وہ رسول جس کو خود اللہ نے عالم غیب بنایا، وہ رسول جس نے خود یہ فرمایا کہ مجھ پر تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے، وہ رسول جس نے خود یہ فرمایا کہ میں نے ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جنت میرے اتنے قریب ہو گئی کہ میں اگر چاہتا تو جنت کا ایک پھل توڑ لاتا، لیکن میں نے نہیں توڑا۔ جس کی نگاہ کے سامنے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے سارے حالات ہیں، جس پر ہماری ظاہری حالتوں سے لے کر حالتیں بھی پوشیدہ نہیں ہیں اور ظاہری حالتیں بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اس رسول سے کہا جا رہا ہے رسول یہ کہتے رہا کرو اے میرے رب میرا علم زائد، میرا علم اور بڑھا۔ آج آپ کو جو گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، عالم محبوب پاک تعلیم کے تعلق سے، تعلیم دین کے تعلق سے کیا پیغام اس کو آپ تک پہنچا دوں۔ دیکھیے پیغام دو طرح کے ہوتے ہیں، پیغام میں سے دو طرح کے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے ابھی پوری تقریر سماعت کی مجھ سے پیش رو خطیب کہ الحمدللہ ہم جس مرشد کے دامن سے وابستہ ہیں اور جس کی نسبتوں سے جڑ کر ہم اپنے آپ کو اشرفی کہلاتے ہیں، ان کی پیدائش ایک شاہی خاندان میں، ان کے والد گرامی بادشاہ اور اپنے وقت کے ولی بھی تھے۔ بادشاہ کی طرح بادشاہ مت سمجھ لینا، خود مخدوم پاک کے تعلق سے آپ کی پیدائش کی خبر آپ کو پیدائش سے پہلے مل چکی تھی۔ یہ بات معلوم تھی کہ جس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے وہ مادرزاد ولی ہوگا، یہ بات معلوم تھی کہ جس بچے کی پیدائش ہونی ہے اس کا نام اشرف رکھا جانا ہے، یہ بات معلوم تھی کہ جس بچے کی پیدائش ہونی ہے وہ اپنے وقت کا امام ہوگا۔ پیدائش کے بعد جب آنکھیں کھولی، عیش کا ماحول تھا، بادشاہت کا دور تھا، جس کا ابا بادشاہ ہو، جس کے گھر میں بادشاہت ہو، جو بادشاہوں کے ماحول میں رہ رہا ہے، خود ہونے والا بادشاہ ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی نزاکتوں کا، اس کی خوش عیشیوں کا، اس کی خوش پوشاکیوں کے لیے کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی؟ اس کے ناز اٹھانے والے، اس کے نخرے اٹھانے والے کیا کہیں سے کم ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن مخدوم پاک کے احوال میں آیا کہ 7 سال کی عمر میں حافظ قراءات 7 تھے۔ کیا تھے؟ بس خالی کہہ دو ایک بار لفظ، کیا تھے؟ حافظ قراءات 7۔ اب یہ لفظ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اس لیے سمجھو، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح سے نازل فرمایا۔ حدیث پاک میں آیا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کئی طریقوں پر نازل کیا گیا اور ان سب طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا قاری مظہر صاحب تشریف فرمائے، 1 قرات، 2 قرات، 3 قرات، 4 قرات، 5 قرات، 6 قرات، 7 قرات۔ الحمدللہ جس وقت سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر یہ 7 قراتیں ہمارے درمیان رائج،
मुतवातिर है, मशहूर है। उस वक्त से लेकर आज तक इसके पढ़ने पढ़ाने वाले हर दौर में कसरत से पाए जाते रहे। ये अलग बात है कि आज तक की बात नहीं पहुंची। ये किरातें कई एक हैं और कुरान पाक को पढ़ने के अंदाज, लहजे, उसलूब, अल्फाज, कलिमात, हरकतें, सकनात सब अलग अलग कई तरह से साबित है, और जितने तरह से साबित है हर तरह से पढ़ना जाएगा। और उनमें से किसी एक का भी जो मुनकिर होगा, किसी एक के भी जो कुरान होने का इनकार करेगा, वो काफिर। क्या है? वो काफिर। सातों किरातों को मानना आप पर और हम पर फर्ज है, और इसके पढ़ने वाले हर दौर में रहे। अब आप उससे कहेंगे कि ये बताइए कि जब हर दौर में रहे हैं तो मखदूम पाक की क्या खुसूसियत? वही मैं आपको बताऊं। इन सातों किरातों के पढ़ने वाले हर दौर में रहे। आमतौर से होते हैं जो किराते सबा के कारी होते हैं। खुद मुझे भी ये शरफ हासिल है, लेकिन कारी होना अलग बात है और हाफिज होना अलग बात है। कारी का मतलब यह है कि हमारा जो खास कुरान पाक है उसमें हम शॉर्टकट में निशान लगा लेते हैं कि इसको इस तरह भी पढ़ना है, इस तरह भी पढ़ना है, इस तरह भी पढ़ना है। जब वही कुरान पाक हमारे पास होगा तभी पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। और हाफिज का मतलब यह है कि कुरान कोई सा भी हाथ में लाके दे दीजिए, वो सातों किरात में पढ़ के बता दें। सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो कारी नहीं है, हाफिज है। बेशक। अब आप सोचिए, 7 साल की उम्र में हमारे बच्चे, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक किरात के हाफिज नहीं थे, मखदूम पाक 7 किरातों के हाफिज थे, जो सातों मुतवातिर हैं। और 14 साल की उम्र में आपकी जाते गिरामी तमाम उलूम व फनून में महारत तामा हासिल कर चुकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों की तसनीफ को लेकर मखदूम पाक के हालात में जो बात है वो ऐसी है कि शायद तारीख में जल्दी नहीं मिलेगी। आप तो ढूंढ डालिए, मशाइख की तारीखें पढ़िए, अगर कहीं नजर आ जाए तो बताइएगा। फनून में महारत होना, उलूम में महारत होना, राइजा में महारत होना, गैर राइजा में महारत होना, उलूम नादिरा में महारत हो जाना, ये सब कोई कमाल की बात नहीं। उससे भी कमाल की बात क्या है मैं आपको बताऊं। आप में से कोई अगर अरब पहुंचता है तो उसे कितनी दुश्वारी आती है? आती है ना? क्यों? लैंग्वेज प्रॉब्लम, जबान की मुश्किल। वो अरबी बोलते हैं, हम सब। अरे हद तो यह है कि हम लोग 9 साल पढ़ के भी नहीं समझ पाते। क्यों? इसलिए कि आपको कहने में एक लफ्ज लग रहा है कि हम अरबी जानते हैं, वो अरबी बोलते हैं। ये अरबी लफ्ज एक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग कौन सी जबान बोलते हो? बताइए, आप लोग कौन सी जबान बोलते हो? उर्दू ना? बताओ किसी डिक्शनरी में हम ये कहां लिखा है? कहां लिखा है? उल्ला ललवारा, पल्ला ललवारा, क्या? रायपुर, उल्ला रायपुर, पल्ला रायपुर कहां है? हाँ, ये सही है। उल्ला रायपुर। उर्दू जानने वाला समझ सकता है कि उल्ला रायपुर का क्या मतलब हुआ? उर्दू जानता है, पढ़ता है, समझता है, किताबों में पढ़ लेता है, लेकिन उल्ला रायपुर का मतलब कुछ नहीं समझेगा। और पल्ला रायपुर, इसका मतलब नहीं समझेगा, जबकि उर्दू तो जानता है। किसी जबान को किताबों में लिखा जाना, वो जबान अलग होती है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो अलग। ऐसे ही अरबी में है, जो अरबी किताबों में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, हम उसे बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अरब में जाके मुश्किल आनी। क्यों? इसलिए कि वो उनकी बोली जाने वाली भाषा है, किताबों वाली भाषा नहीं। बहरहाल
बस इतनी सी बात समझ लीजिए, अब समझिए आगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं जहां लेकर रहकर पढ़ा, मैंने जितनी किताबें सीखी, जितनी किताबें पढ़ी, जितनी जबानें जानी, उन जबानों का मुझे इल्म है। मैं उस जबान में किताब लिख सकता हूं अगर महारत बहुत ज्यादा हासिल है तब। मखदूम पाक की पैदाइश ईरान में है, आपकी मादरी जबान फारसी में थी, फारसी। लेकिन इसके बावजूद मुअर्रिखीन सब मुत्तफिक हैं इस बात पर कि उलूम व फनून की महारत अलग बात, मखदूम पाक जिस इलाके में पहुंचते थे उस इलाके के लोगों से उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उन्हीं की जबान में किताब लिखकर उनकी रुश्तो हिदायत के लिए अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए, दोनों बातें जो मैंने आपको समझाई, बोली जाने वाली जबान अलग है, लिखी जाने वाली अलग है। हम जो बोलते हैं कुछ और है, जो लिखते हैं वो कुछ और है। जो उर्दू यहां बोली जाती है वो उर्दू लिखी नहीं जाती, और जो उर्दू लिखी जाती है वो उर्दू आप बोलते नहीं है। और अगर बोलने पे पाबंदी लगाई जाए तब भी आपको लगता है पाबंद किया जा रहा है। कभी अगर फुर्सत मिले तो तलबा से आके पूछिएगा कैसा लगता है, अजीब सा पाबंदी लग रही है। बहरहाल, तो दोनों जबानें अलग अलग हैं, लेकिन मखदूम पाक जिस इलाके में पहुंचते उनसे बात भी करते थे और उन्हीं की जबान में किताब लिख कर दिया करते थे। ये वो महारत है जिसको कहते हैं इल्म नहीं, जबान नहीं, लुगत नहीं, उम्मुल लुगत अता करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जबानों अब आप मुझे बताइए कि इतने उलूम व फनून को सीखना, इतनी तसानीफ फरमाना, 14 साल की उम्र में महारत ताम्मा उलूम व फनून में हासिल हो जाना, 7 साल की उम्र में हाफिज क़िराअत सबा हो जाना, उस शख्स के लिए जिसके घर में काम करने वाले मुलाजिमीन हैं, जिसके घर में खुशहाली है, जिसके खानदान में बादशाहत है, जो होने वाला बादशाह है, जिसे यकीन है मैं कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं मुझे बादशाहत मिलनी है, जिसे यकीन है मैं कुछ सीखूं ना सीखूं बादशाहत मेरे ही से कुछ की जाएगी, उसके बावजूद वो 7 साल की उम्र में हाफिज क़िराअत सबा हुआ। उसने दरस निजामी शुरू किया, जिसको आज दरस निजामी कहेंगे, उस वक्त ये नहीं था। किताबों की तालीम शुरू की, किताबें पढ़ना शुरू की, और 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तमाम उलूम व फनून में महारत हासिल कर ली, ऐसी कि जिस जबान में चाहे उस जबान में किताब तस्नीफ फरमा दे। बातें सब अलग अलग हैं, वक्त बड़ा मुख्तसर है, इसलिए बात को मुख्तसर कर रहा हूं। किताब जानना और होता है, जबान जानना और होता है, और जबान में इतनी महारत के किताब तस्नीफ कर सके ये और होता है। जबान बोलना और होता है, जबान का लबो लहजा अलग होता है। लेकिन मुअर्रिखीन कहते हैं जहां तशरीफ ले गए वहीं की जबान में उनसे बात की और वहीं की जबान के मुताबिक उन्हें किताबें रुश्तो हिदायत लिखकर उनके हवाले कर दी। कोई गिनती नहीं है कि मखदूम पाक ने अपनी इस हयात मुबारका में कितनी किताबें तस्नीफ फरमाई। जहां जहां गए, तालीमी सफर जहां जहां रहे, तबलीगी असफार दौरे जहां जहां हुए, वहां के लोगों को वहां की जबान में किताबें तस्नीफ फरमा के दे दी। मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरी समझ में नहीं आया, हलक से नीचे नहीं उतरा कि एक ही इंसान को इतनी जबानों में बैक वक्त महारत कैसे आ सकती है। समझ में आया वहां जाकर, जहां जाकर आखिर हो जाता है। सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। वहां जाकर समझ में आया कि मखदूम पाक कोई और नहीं, उसी बाबुल इल्म के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम, फैजान मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह। अब जो मुझे आपसे कहना है, जब आपसे कोई कहे कि 7 साल की उम्र में हाफिज क़िराअत सबा, जब आपसे कोई कहे कि 10 साल की उम्र में बेहतरीन आलिम थे, जब आपसे कोई कहे कि 14 साल की उम्र में महारत ताम्मा हासिल कर चुके थे,
سنیے مت، بلکہ اس پیغام سے یہ پیغام لے کر جائیے. 7 سال کی عمر میں حافظ قراءت سبا تھے، یعنی ہمارے حالات اچھے ہوں یا برے، غربت کے ہوں یا امارت کے، بادشاہت کے ہوں یا فقیری کے، حالات میں تنگیاں ہوں یا وسعتیں، ہمیں علم دین کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں. جب آپ سے کوئی کہے کہ 14 سال کی عمر میں مہارت تامہ حاصل کر چکے تھے، تب فیصلہ کیجئے کہ ہمیں علم دین سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں علم دین سے دور نہیں رہنا ہے. بچوں کو صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ سمجھدار بنانا. سیفنی والوں سے ایک خصوصی درخواست کی تھی کہ حافظ قرآن ہوتے ہی مت سمجھا کرو کہ بس حافظ بھی ہو گیا، بہت ہو گیا، اب کاروبار میں لگا. ایک عام ذہنیت ہے یہاں کی، حافظ قرآن ہو کاروبار نہیں. بچے میں اگر صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس استعداد ہے، تو اسے دینی علم سے بھی مزین کیجیے اور دنیاوی علم سے بھی مزین. حافظ قرآن علم کی انتہا نہیں. قرآن کا حفظ کر لینا علم کی انتہا نہیں، دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ بس حافظ ہو گیا، بہت ہو گیا، بس حافظ صاحب ہو گئے، اور کیا کریں؟ نہیں. تو مخدوم پاک نے اپنے کردار سے یہ عمل، یہ پیغام دیا، اپنے عمل سے یہ پیغام دیا کہ علم دین ہر ایک کی زندگی میں بہت ضروری ہے. حالات اچھے برے ہو سکتے ہیں لیکن علم سے جڑے رہنے. تو آپ نے سنا نا ابھی قاری قراءت سبا و عشرہ. بس اب آگے آنے والی تقریر کی بات کرتے ہیں. آپ کو جو تقریر حضور اشرف ملت سے سماعت فرمانی ہے، تقریر نہیں بلکہ آپ کو اس انداز میں بیٹھنا ہے، اس انداز میں سننا ہے کہ ہم کو کچھ حاصل کرنا، کچھ حاصل کرنا. ایسا نہیں کہ صرف آئے، سنا، انجوائے کیا، چل گیا. اس تعلق سے بھی ایک قول مخدوم پاک کا بس بات ہے. میں نے کہا تھا نا ایک کچھ ربط بناؤں گا دونوں کو، پھر چلا جاؤں. مخدوم پاک کا ایک فرمان سنیے، اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اور آنے کے لیے ماحول بنائیے. مخدوم پاک فرماتے ہیں بغیر طلب کے علم دینا یہ خود علم کی اہمیت، یعنی جو علم لینے آیا ہے وہ طلب کرے. ایسا نہیں کہ وہ مست ہیں، ہم بے وجہ پڑھ رہے، آج پڑھ لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں، کیوں پڑھ؟ بغیر طلب کے کسی کو کچھ علم کی بات بتانا یہ اچھا نہیں ہے. آپ اگر گھر سے اسی نیت سے آئے ہیں کہ تقریر سے کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی پیغام لے کر جانا ہے، کچھ لے کر آنا ہے اپنا حصہ، تو طلب کے بغیر، اور وہ بھی اشرفی شہزادے سے آپ لوگ کہتے ہیں طلب کے بغیر نہیں جاتے. جب حضور غوث العالم علیہ الرحمت والرضوان یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر طلب کے علم نہیں دینا چاہیے، اور ہم انہی کے خاندان کے چشم و چراغ سے یہ چاہتے ہیں کہ بغیر طلب کے کچھ مل جائے، پھر کیا کریں؟ مدرسے میں تو طلب ایسے معلوم ہو جاتی ہے کہ طلبہ آتے ہیں، ایڈمیشن فارم بھرتے ہیں، دنیا بھر کے کسی بھی چیز پہ سائن کرائیے، اس وقت آپ کے ہر حکم کی پابندی کروں گا، مدرسے کے تمام قواعد، اس وقت سب پہ سائن کر دیں. چلیے ہم کیا کریں؟
तलब जरूरी नहीं कि जबान से, जरूरी नहीं कि आप कहें हुजूर हमें कुछ पढ़ाइए, जरूरी नहीं कि आप जबान से कहें कि हमें कुछ बता दीजिए, जरूरी नहीं कि आप लफ्जों से कहें कि हमें कुछ सिखा दिया जाए। आपके हालात, आपका किरदार, आपका अंदाज, आपका तरीका, आपका सलीका, आपकी अदाएं खुद ये बता देंगी कि हुजूर हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ हिस्सा अता कर दीजिए, हम कुछ हिस्सा लेने के लिए। इस कौल से आपको आइंदा के लिए तैयार होना है और इल्म की अहमियत समझना है, और इन दोनों बातों को लेकर जाना है कि इल्म के ताल्लुक से मखदूम पाक ने दो पैगाम दिए, एक अपने अमल से और एक अपने कौल से। मखदूम पाक सिर्फ वली नहीं थे, आप अपने वक्त के अजीम मुहक्किक ऐसे, अब एक बात पढ़े लिखों के लिए कह दूं, मिशकातुल मसाबीह की जो शरह है मिरकातुल मफातिह, उसमें भी किसी बहस के इख्तिताम पर मुसन्निफ जब खत्म करता है, मुहर लगाता है, तो कहता है काला अशरफ। ये मखदूम पाक की तहकीक है, बस बात खत्म। लेकिन आज हम नारा लगाते हैं इस पैगाम से, इस पैगाम को हाथों से पकड़िए और अपने आप को सरापा तलब बनाइए, इस नीयत से हाजिर हुई है कि हमें कुछ सुनना है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ हासिल करना है। ये नहीं कि सुना और सब उड़ा दिया और दस्तारबंदी के मंजर के बाद तकरीर समाप्त कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने, समझने, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।